Welcome to today's topic, refraction through a prism. This topic is from Unit 3, that is optics, optical instruments and optical fibers. It is strictly according to the revised curriculum of CSVTU for diploma engineering students. Since diploma engineering students are using both the languages English and Hindi, this lecture will aim considering both the language students. इस लेक्चर को मैंने दोनों भाषा के स्टूडेंट्स के लिए ध्यान में रखकर प्रिपेयर किया है ताकि हिंदी भाषा के स्टूडेंट्स भी इससे लाभान्वित हों. So let's start today's topic, refraction through a prism. Now, as you all know, refraction, it is a phenomena in which light, it changes its path as it travels from one medium to another. अपवर्तन एक फिनोमिना है जिसमें लाइट रे अपने पाथ से विचलित हो जाती है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है. अपवर्तन से जुड़ा हुआ एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक. तो अपवर्तनांक को हम म्यू से दर्शाते हैं. म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ sin I by sin R. Now what is I? I is the angle of incidence. I is आपतन कोण and R is the angle of refraction, that is R जो है हमारा अपवर्तन कोण है. Quick look at what is prism. Prism is actually a transparent refracting medium bounded by two plane surfaces. Now here, as you can see in the diagram, there are two refracting faces. One is to the right and other is to the left. And in between a triangular portion is there. So these two refracting faces, as you can see, they are meeting at a straight edge which is called the refracting edge. ये जो दोनों हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं ये एक लाइन के अलोंग मिल रहे हैं आपस में जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज. और इन दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच में जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म का कोण. So prism is a portion of transparent refracting medium bounded by two plane surfaces meeting each other along a straight edge. Now we will study the phenomena of refraction through this prism. आज के हमारे इस लेक्चर का उद्देश्य है कि हम इस प्रिज्म में अपवर्तन के नियम को समझेंगे और उससे जुड़े कुछ रिलेशंस डेराइव करेंगे. अगर हम देखें एक प्रिज्म को, ये हमने एक प्रिज्म का सेक्शन लिया है. दिस इज सेक्शन ऑफ प्रिज्म ABC. यहाँ हमने सबसे पहले दो नॉर्मल्स ड्रॉ करनी है, NO एंड N'O. दो अभिलंब बनाएंगे हम. कहाँ बनाएंगे अभिलंब? दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस पे. पहली रिफ्रैक्टिंग फेस AB और दूसरी रिफ्रैक्टिंग फेस AC. दोनों पे हमने एक एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली, NO और N'O. अब लाइट रे हमारी इंसिडेंट हो रही है PQ. इसको हम कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे. और आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में जो कोण बनेगा वो कहलाएगा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस I. अब बिंदु Q पर ये इंसिडेंट रे अपवर्तित होगी, रिफ्रैक्ट होगी. Now refraction, as we all know,
It is bending of light beam when it travels from one medium to another. So this medium is air and this medium is glass. Light is entering from air to glass. What will happen? It will suffer refraction at point Q. According to laws of refraction, this incident ray after refraction will bend towards the normal. Why towards the normal? Because it is moving from rarer to denser medium. आपतित किरण सरल से विरल माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी. Then it will go straight. This ray QR is called the refracted ray. अपवर्तित किरण. बिंदु R पर again it will suffer refraction. बिंदु R पर फिर से अपवर्तन होगा. अब जो लाइट रे है वो विरल से सरल माध्यम की तरफ जा रही है. The refracted ray now QR is moving from denser to rarer medium. So it will bend away from the normal. This is the normal and dash O, and the light ray is moving away from the normal. This ray RS is called the emergent ray, निर्गत किरण, and the angle made by the emergent ray and the normal is called angle of emergence. So three rays we can see: incident ray PQ, refracted ray QR, and emergent ray RS. Now if there was no refraction, light ray should have gone straight like this. But after refraction through the prism, it has bent from its straight line path. If we extend this ray SR backwards, a angle is created here. This angle delta is called angle of deviation. अगर प्रिज्म से अपवर्तन नहीं होता तो ये रेखा सीधी निकल जानी चाहिए थी. अगर हम इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ इस आपतित किरण के और निर्गत किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम कहते हैं विचलन कोण. कहने का तात्पर्य है कि ये रे अपने मार्ग से कितनी विचलित हुई? डेल्टा एंगल से. द रे हैज डेविएटेड थ्रू एन एंगल डेल्टा. Now we will derive a relation between all these terms. That is A, as we have seen in the previous slide, angle of prism, I, angle of incidence, E, angle of emergence, delta, angle of deviation, and R1 and R2, angle of refraction. R1 और R2 हमारे क्या है? अपवर्तन कोण है. अब हम इन सारे एंगल्स के बीच में एक रिलेशन डेराइव करेंगे. इस स्लाइड में हमारा जो प्रिज्म है ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा हुआ है. कैसे पता चलेगा कि ये प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है? न्यूनतम विचलन या मिनिमम डेविएशन पोजीशन में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल रहती है. ये एक इसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है. When the prism is in minimum deviation position, यदि प्रिज्म हमारा न्यूनतम विचलन की स्थिति में है तो अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे आधार के प्रिज्म के आधार के समानांतर रहती है. और साथ ही साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर रहता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस के, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर रहता है. किस पोजीशन में? न्यूनतम विचलन की स्थिति में. तो हम क्या करेंगे? ये हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बार बार चेंज करेंगे. बार बार चेंज कैसे करेंगे? एक बार हम उसकी वैल्यू 30 रख सकते हैं, 35 रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं. इसको चेंज करेंगे और हम उसके अकॉर्डिंग अपने डेल्टा की वैल्यू को नोट करेंगे. ये एक्सपेरिमेंट लैब में भी करते हैं.
तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करें विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में, that means if we plot a graph between angle of deviation and angle of incidence, the graph is obtained like this. That means as we go on increasing the angle of incidence, angle of deviation decreases and it attains a minimum value at a particular value of angle of incidence. This minimum value of angle of deviation is called minimum deviation. As you can see from the graph, इस ग्राफ से हम साफ देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर आपतन कोण पर ही विचलन कोण न्यूनतम हो रहा है, whereas बाकी सब स्थिति में आप देखो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं अलग अलग I1 I2 पर विचलन कोण उसके लिए समान है, पर न्यूनतम विचलन की स्थिति में केवल एक ही आपतन कोण होगा. देयर विल बी ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द डेविएशन विल बी मिनिमम. इस मिनिमम डेविएशन के बाद यदि हम आपतन कोण को फर्दर और बढ़ाएं तो विचलन कोण अब हमारा बढ़ने लगता है. ये ग्राफ हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी निकाल सकते हैं. तो यहाँ हम अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में इस फॉर्मूला को डेराइव करेंगे. तो हमने क्या रख दी है कंडीशन, डेल्टा विचलन कोण किसके बराबर हो गया, न्यूनतम विचलन मिनिमम डेविएशन के बराबर. और जैसा कि अभी मैंने बताया उस स्थिति में एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो जाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर. और हमारे जो दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1 और R2 ये भी कैसे हो जाएंगे, बराबर. और इसको हमने सपोज कर लिया R. तो हमारा जो प्रीवियस इक्वेशन मिला था A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, उसमें हम ये वैल्यू रख देंगे. तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा A इक्वल्स टू R प्लस R और R इक्वल्स टू A बाई 2. दूसरा इक्वेशन था हमारा A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E. अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने डेराइव किया था इसको. अगेन हम इसमें कंडीशन रख देंगे न्यूनतम विचलन वाली, डेल्टा के स्थान पे डेल्टा M और E के स्थान पे I. जब ये वैल्यूज रखेंगे तो हमारा I मिलेगा A प्लस डेल्टा M बाई 2. प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया जाता है इस फॉर्मूला के द्वारा sin I बाई sin R. इसमें हम I की वैल्यू रख देंगे यहाँ से और R की वैल्यू रख देंगे ऊपर वाले इक्वेशन से. तो हमारा आज का ये जो डेरिवेशन है ये प्रूव हो जाएगा. दैट इज म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन साइन E बाई 2. यही हमें प्रूव करना था. आज के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है आप लोगों के लिए. डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, आपको ये निकालना है. अभी हमने देखा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ज्यादा थी, 10 से ज्यादा थी, से 30, 35, उस वक्त हमने देखा कि जो डेल्टा है वो आपतन कोण I पे निर्भर कर रहा था. पर यदि हम डेविएशन थ्रू प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल देखें तो ये डेल्टा जो है ये I पे निर्भर नहीं करता. तो असाइनमेंट में आपको क्या करना है, डेल्टा का वह मान निकालना है. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ I. हिंट क्या रखेंगे, यदि स्मॉल इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 10, then sin I will be treated as approximately equal to I and sin R approximately equal to R. ये हिंट्स को यूज करके आप डेल्टा के लिए एक इक्वेशन निकालोगे जिसमें ये I पे निर्भर नहीं करेगा. सो व्हाट इज दैट इक्वेशन, ये आप डेराइव करेंगे. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट lecture. That's all for now. Thank you.